Hello everybody, welcome to iExamB. Embrace the iExamB learning experience. In this video, I am going to discuss Phase 1 analysis of 2021, 2022 and 2023 exam. What kind of questions came in various subjects in these 3 years in Phase 1 and what is the weightage of various topics, how you should be preparing for various subjects, both merit sections and qualifying sections. So this all we are going to discuss in this video. First of all, let's see the cutoff of prelims. Remember, the first 5 sections are only qualifying sections. Quantitative aptitude, reasoning, English language, decision making and computer awareness. In this, out of these maximum marks, you have to just get this sectional cutoff clear. Now the sectional cutoff may vary, so look at these in detail and understand how much you should be targeting. Then in general awareness, economic and social issues and agriculture, rural development. For these 3 merit sections, apart from the sectional cutoff that is mentioned here, you should clear the overall cutoff. The total aggregate score maximum marks are 200, but for merit section it's only 100, which is ARD, ESI and GA subjects. For computer information technology in 2023, this was 11.5, 14.5 and 26.25 overall cutoff. In order to appear for मेंस के लिए 1:25 की रेशियो में स्टूडेंट्स को कॉल किया जाता है. For one vacancy, 25 students are called for means. Now let's move on and understand what kind of questions, the topics from which the questions came in various subjects. So first of all, in ARD, Agriculture Rural Development, the questions are divided into 2 parts, conceptual and dynamic questions. In conceptual portion, these were the areas from which questions came: agronomy, soil science, irrigation, horticulture, fisheries, animal husbandry, extension. इन सब से आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं. एंड देन इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यू हैव करंट टॉपिक्स और डायनामिक टॉपिक जो आपको करंट अफेयर्स में मिलता है, एंड स्कीम्स. Schemes name or objective was being asked. In 2023, APIDA was asked, Lakpati Didi, NAFED, PMFBY, Amrit Dharohar, IFCO, SEABC scheme, CADWM. In 2022, these were the schemes asked. In 2021, these were the topics, these were the schemes or their objective asked. Scheme data was asked of MSP, ENAM. MSP in 2022 was also asked and these were asked in 2021. रिपोर्ट्स कुछ नहीं पूछी गई थी 2023 में, ना ही कोई डेटा रिलेटेड क्वेश्चन था. इन 2022 these were the questions: MPDA, MSP, GVA, food grain production, MPDA. These were the questions asked in 2022. तो आप देख सकते हैं आपको स्कीम्स बहुत अच्छे से पढ़नी है. स्कीम रिलेटेड डेटा, रिपोर्ट्स, डेटा, ये आपको करंट डायनामिक एस्पेक्ट में पढ़ना है और आपको काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल एरिया भी कवर करना है फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट. दिस इज द सिलेबस ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. दिस इज योर सिलेबस फॉर एग्रीकल्चर. यह आपको नीचे अटैच डिस्क्रिप्शन में जो कंप्लीट गाइडेंस स्टडी मॉड्यूल है उसमें भी मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं या फिर आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड दिस इज फॉर रूरल डेवलपमेंट. दिस इज द सिलेबस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. आई थिंक ये आपका नोटिफिकेशन में भी मेंशन है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट है. देन कमिंग टू ESI, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. यहाँ पर आपके क्वेश्चंस स्कीम से काफ़ी आते हैं. अराउंड 15 to 18 क्वेश्चंस आपके स्कीम से आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत, NCS, मेटर्निटी बेनिफिट, PMJJBY, PMSY, MDY, ESI, आज़ादी से अंत्योदय तक, उज्ज्वला योजना, PM व्यय वंदना योजना, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, PM विकास, जल जीवन मिशन, फसल, PMGSY. तो आपके 15 to 18 क्वेश्चंस लगभग स्कीम से आते हैं. देन 10 क्वेश्चंस लगभग डेटा से आते हैं, विच इज अबाउट शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, सेंसस, EPS अमाउंट, बजट, इकोनॉमिक सर्वे रिसेंट आया है तो उसके भी क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक सोशल इश्यूज या फिर जनरल अवेयरनेस में देखने को मिल जाएंगे. मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, शेयर ऑफ MSME, MSP, कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, पॉपुलेशन इन एग्रीकल्चर, सेंसस, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड. देन देयर आर अराउंड 5 क्वेश्चंस फ्रॉम रिपोर्ट्स, various reports which are released by national and international organizations: gender gap, food security index, business reforms, maintenance of welfare of parents. अभी लेबर डेटा एंड एम्प्लॉयमेंट डेटा भी आया था तो वो भी आप पढ़ लेना. पॉवर्टी इंडेक्स, इन सब से रिलेटेड रिपोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस. और कुछ क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल ऑफ इकोनॉमिक सोशल इशू से भी पूछे जा सकते हैं, लाइक सर्विस सेक्टर, आर्टिकल रिलेटेड टू राइट ऑफ टू एजुकेशन, सर्टेन अदर आर्टिकल्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन विच आर रिलेटेड टू सोशल एरियाज, ओपीएम इज लीगल और इलीगल, इन्फ्लेशन टॉलरेंस, वाटरशेड. तो ये सभी क्वेश्चंस आपके 2023 में आए थे. दीज आर द एग्जाम्पल्स.
The number of questions varied in this. So coming to the syllabus, this is the syllabus of economic and social issues that you have to study. You can find this in the complete guide attached in the description below. The first topic is nature of the Indian economy. Second is opening up of Indian economy, which is globalization. Then inflation related. Then poverty alleviation and employment generation in India. Population trends, agriculture, industry, non-institutional and institutional agencies, globalization of economy, social infrastructure, social justice. तो ये सभी 11 के 11 टॉपिक्स आपके इकोनॉमिक सोशल इश्यूज में आ जाते हैं. Coming to the next area, which is reasoning, which is of 20 marks, जिसकी कट ऑफ 3-4 के आसपास जाती है. This has been the questions, the level of questions also in the past 2 years. Seating arrangement से 8 questions आ गए थे. That means 2 seating arrangement puzzles. The level was moderate. Then syllogisms in 2023 there were 3. 2022 में 2 syllogisms पूछे गए थे easy to moderate level के. Then inequalities 2 and 2 respectively, easy to moderate level. Blood relation 2 and 1, easy to moderate level. Direction and distance, 1 question was there in 2023, 2 were there in 2022, easy to moderate level. Coding decoding से 4 questions थे, 5 questions थे, which were in the form of a puzzle, moderate level के ये questions. तो आप ये देखिए, आपको ये सब एरियाज तो पढ़ने ही हैं. आई विल नॉट एडवाइस कि आप रीजनिंग में कुछ छोड़ के जाइए, बट आपको सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है. दिस इज अ क्वालिफाइंग सेक्शन. तो जो भी आपके स्ट्रेंथ्स है इनमें उस पर वर्क कीजिए एंड ट्राई टू गेट दोज 5-6 मार्क्स हियर, ताकि आप सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर पाएँ अगर वो थोड़ी हाई भी जाती है. देन कमिंग टू क्वांट्स में 20 में से कट ऑफ 3 रही है, 3-4 की रेंज में ही रहती है. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन दीज एंड द एरियाज फ्रॉम विच द क्वेश्चंस हैव कम. डेटा इंटरप्रिटेशन, पाई चार्ट रिलेटेड क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है. 5 क्वेश्चंस फ्रॉम पाई चार्ट रिलेटेड, इजी टू मॉडरेट लेवल का होता है. 5 क्वेश्चंस नंबर सीरीज से भी देखने को मिले हैं. सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन से भी 4 and 3 क्वेश्चंस रिस्पेक्टिवली. बाकी अरिथमेटिक एरिया से आते हैं. अरिथमेटिक कैन इंक्लूड प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, ये सब कुछ आपका अरिथमेटिक में आता है. 2023 में 6 क्वेश्चंस अरिथमेटिक से थे, 2022 में 4 क्वेश्चंस थे एंड 3 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी थे. द लेवल इज इजी टू मॉडरेट. द नेक्स्ट इज इंग्लिश. इंग्लिश की कट ऑफ 30 में से हमेशा अच्छी ही गई है, 10 to 12 की रेंज में रहती है. सो आपको यहाँ पर अच्छा स्कोर टारगेट करना है. टारगेट समवेयर 15 to 18 स्कोर एटलीस्ट इन द इंग्लिश पोर्शन. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स हैव बीन दीज. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 7 क्वेश्चंस देखे गए हैं हर साल, इजी टू मॉडरेट लेवल के. वर्ड स्वैपिंग विच इज पैरा जम्बल, इससे भी आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं एवरी ईयर, इजी लेवल के. एरर डिटेक्शन 3 and 4 रिस्पेक्टिवली. सेंटेंस रीअरेंजमेंट से भी 5 क्वेश्चंस हर साल देखने को मिले हैं. फिल इन द ब्लैंक से भी 5 आते हैं. बाकी मिसलेनियस एरियाज विच कैन बी फिलर्स, मैच द कॉलम, वेरियस अदर एरियाज, तो वहाँ से आपको मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं. यहाँ पर आपको थोड़ा हाई स्कोर टारगेट करना चाहिए, समवेयर 15 से 18 के रेंज में टारगेट कर लीजिए, विच इज अ गुड इनफ स्कोर. Then the next is decision making. Decision making 10 marks की आती है, कट ऑफ 1.5 ही रही है over the past years. Decision making technique से 2 questions आए हैं. There were 2 shifts, तो यहाँ पर 2 shifts की बात हो रही है. Decision making technique से 2 questions each आए हैं. Types of decision से 2 questions each आए हैं. Decision making style से 2 and 1 respectively. Decision making theory से 1 and 2 respectively. Bias in decision making 2 and 2. Decision matrix से 1 each. So this has been the number of questions and the topics from which the questions have come in decision making. तो आपको इस तरीके से ये सब प्रिपरेशन करना है. इस तरीके से आपके टॉपिक्स डिवाइडेड हैं. आप देख लीजिए इनमें से आपके कौन से स्ट्रेंथ्स हैं, किन को आप इजीली पढ़ पाएंगे. क्वालिफाइंग सेक्शंस में आप उन पर फोकस कर सकते हैं. मेरिट सेक्शंस पर आप टारगेट कीजिए समवेयर 35 to 40 मार्क्स. 30-35 भी करेंगे तो भी चलेगा, बट इट्स बेटर टू टारगेट अ लिटिल बिट हाई एंड दैट कैन बी डन इन दिस 1 month. सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम दैट इज अवेलेबल इन योर हैंड. कट ऑफ्स बहुत हाई नहीं जाती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रिपरेशन कीजिए. इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ प्रिपरेशन मटेरियल गाइडेंस, you can check out an Nabat IT online course. You can enroll in our course and make your preparation 50% faster with iExamB. That's all for now in this video. Thank you so much for watching this video. Subscribe to our channel. Stay tuned.